Hello everyone. In today's video I am going to discuss about the next approach of the curriculum, that is learner centered curriculum. Learner centered curriculum में क्या है? It is a method of teaching that shift the focus of instruction from teacher to student. अब तक हम क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में हमने सिर्फ सब्जेक्ट पे ही फोकस किया था. उसी तरह से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हम सिर्फ स्टूडेंट की थिंकिंग की तरफ ध्यान देंगे. Here the aim is to develop the independence of the learner by making learner active in his learning path. तो हमारा एम क्या रहेगा कि हमें उन्हें स्टूडेंट को इतनी इंडिपेंडेंस होगी कि वो अपनी पेस और अपना लर्निंग पाथ खुद डिसाइड कर सके. इट फोकसेस ऑन स्किल्स दैट एनेबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इसका फोकस क्या रहेगा? ऐसी स्किल डेवलप करना जो लाइफ लॉन्ग आपको स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में नॉलेज दे. This learner-centered approach is based on the constructivist learning theory that put emphasis on learners' role in constructing meaning from new information and prior experience. यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरी काम कर रही है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, जो एम्फसाइज करेगी लर्नर के रोल को in constructing meaning from new information and prior experiences. In this curriculum approach, students choose what they will want to learn, how they will want to learn, or how they will assess their own learning. They will have to be more active. यहाँ पर इस करिकुलम में हमारे पास क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स के पता होगा उन्हें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हाउ दे विल गोइंग टू असेस दिस नॉलेज इन देयर लेटर ऑन एक्सपीरियंसेस. Here teacher act as a facilitator learning for individuals rather than for the class as whole. यहाँ पर हमारे पास जो टीचर है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, जो सिर्फ पूरी क्लास को एक गाइड करेगा. Its importance, it provide lot of help and assistance to the learner. The curriculum gives students a written detail about the types of learning experience they need to acquire for completing the expected learning objectives. ये करिकुलम स्टूडेंट को क्या कहता है? रिटन डिटेल प्रोवाइड करता है जो वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस they want to learn in order to complete learning objectives. This curriculum makes them familiar with the learning objective, which makes learning purpose and goal oriented. This makes them motivated towards learning. क्योंकि वो अपना learning path खुद से decide कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा motivated feel करेंगे in order to learn any new thing they want to actually learn it. A properly developed curriculum is accompanied by the resource materials needed to supplement it. This resources in suggested experiments and learning activities, project assignment and references. यहाँ पर पूरा प्रॉपरली डेवलप्ड करिकुलम होगा. जैसे सब्जेक्टिव करिकुलम में हमने सब्जेक्ट्स का पूरा करिकुलम डिफाइन किया था, उसी तरह इसमें भी आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा. When learners are aware of the learning objectives, they can plan, execute और evaluate them for realization of learning outcome. क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही पता होगा कि वो पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या सीखने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपने जो करिकुलम को है वेल प्लान्ड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट प्रॉपरली कर सकते हैं, सो दैट कि उन्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट मिले जो भी उन्होंने सीखा है. It can help the learner in learning process from beginning to end for the realization of the set learning objectives. ये learner को help करता है throughout the session. आप beginning से लेकर end तक इस approach से जुड़े हुए हो and learning about their objectives. Realization of these learning objectives result in overall growth and development in all the aspects and dimensions of their personality. अगर आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर होंगे तो आप अब बेटर गोल ओरिएंटेड होंगे और आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसका प्रोग्रेस भी अच्छा होगा, और आप जो फ्यूचर में आपके जो पर्सनैलिटी हैं उसकी डायमेंशंस भी इम्प्रूव हो जाएंगी. बेसिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. इसके बेसिक क्या हैं? वेल सेड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट पीपल लर्न व्हेन दे रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, एक्टिवली प्रैक्टिस द न्यू इन्फॉर्मेशन एंड गेट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस. वो कहते हैं कि लर्निंग हमारी ज़्यादा बेटर इम्प्रूव हो जाती है अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या स्किल्स जो ट्रेंड में हैं उनको यूटिलाइज़ करके कुछ नया लर्निंग स्किल्स, कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं. वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट.
In this approach, the student clearly express their learning goals that are related to their real life roles. यहाँ पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली या करेजियसली बोल सकते हैं कि उन्हें लाइफ में आगे कैसे रोल प्ले करने हैं, तो उस हिसाब से उनका लर्निंग पाथ हो जाएगा. It builds on what a learners already know. The approach is relevant to students' real life context. यहाँ पर जो हमने रोल चूज़ किए हैं वो रियल लाइफ से काफ़ी सिमिलर होंगे. In this approach, the learner construct their own understanding from what they are exposed to in the classroom and what they experience throughout their life. इस approach में learner खुद की अंडरस्टैंडिंग से क्लासरूम में एक्सपोजर हासिल करेंगे what they experience throughout their lives. To develop this curriculum, teacher needs to view learner as a active inquirers and who use previous experience to make meaning of the world. ये इस करिकुलम में टीचर को ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी जो बहुत एक्टिव होंगे लेटेस्ट सिनेरियो को लेके, सो दैट उनके जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है उसी भी हिसाब से इस करिकुलम में सेट हो जाएंगे. एडवांटेजेस क्या हैं? इट गिव्स पावर टू द लर्नर. स्टूडेंट्स सी द नीड्स क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग. उन्हें पहले से पता होगा कि उन्हें किस चीज़ नई चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से क्लासरूम में ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे. इट क्रिएट्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लास वर्क एंड द लर्नर्स नीड्स. ये डायरेक्ट लिंक है क्योंकि जब हम सब्जेक्ट सेंटर्ड में सीख रहे थे, चाहे हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कोर करिकुलम का पार्ट है और हमें उसको पास आउट करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट हायर ग्रेड्स. तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होगा? क्लास वर्क और लर्नर की ज़रूरत की तरफ. लर्नर कैन ईजिली ट्रांसफ़र न्यू स्किल्स इन डे टू डे एक्टिविटीज़. जो वो सीखेगा उसे डे टू डे रूटीन लाइफ में यूज़ भी कर सकता है. इट इनकरेजेस लर्नर्स परसिस्टेंस. ये लर्नर को उसके लर्निंग पाथ की तरफ मोटिवेट करके रखेगी. Disadvantages: it often relies on teachers' ability to create materials appropriate to learners' needs. It often relies on teachers' ability. तो यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आपका जो क्लासरूम स्टडी है वो तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगा अगर आपका टीचर भी उतना एक्टिव है जितना आप लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी को लेके हो. तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज आ जाता है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग एबिलिटी रिड्यूस होती रहती है. तो शायद टीचर के लिए इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कोप अप करना सिमिलर टू स्टूडेंट्स इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. इट रिक्वायर्स मोर स्किल ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एज वेल एज टाइम एंड रिसोर्सेज. यहाँ पर टीचर के पास भी बहुत ज़्यादा स्किल होनी चाहिए सो दैट कि वो आपको गाइड कर सकें. तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज डिवोट होते हैं. इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू मेक एन एक्सेप्टेबल बैलेंस अमंग कंपीटिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर क्या है, टीचर के लिए काफ़ी मुश्किल है कि जो हर एक स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल डिमांड और लर्निंग पाथ होता है, तो उस हिसाब से टीचर के लिए हर एक के लिए इतना फ्लेक्सिबल होना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. In terms of man material resources, this approach could be luxury that learners often cannot afford. क्योंकि यहाँ पर सारी इंडिपेंडेंस एक लर्नर को दी गई है, तो वो 1-on-1 इक्वेशन है जो क्वाइट कॉस्टली है, और लग्जीरियस जो हाई अफोर्डेबल जो इसे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं. दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. थैंक यू सो मच.